Hello everyone, welcome to my online prep. Today we will start with chapter 7, Role of Exim Bank, Reserve Bank in India, ECI, FEMA and FDI and various other related concepts. इस चैप्टर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जैसे कि एक्सिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है, उसके रोल्स, फंक्शंस एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका क्या रोल होता है, व्हाट आर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज फेमा 1999, role of FDI and the FDI's responsibilities and various rules and regulations, concept of ECB, ADR, GDR and other related concepts such as FCCB etc. फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एक्सिम बैंक. एक्सिम बैंक दो वर्ड्स को जोड़ के बना है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट is a process by which, for example, in India, if I'm sending my goods and services outside India to other countries, that means मैं export कर रही हूँ, and import is totally the vice versa. Export Import Bank, the Exim Bank, was established in 1981. After independence, when it was realized almost 20-30 years after the independence that it was realized that export and imports were considerably increasing and they can give a good revenue to the country. So it was recognized that we should have a separate institution जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को हेल्प भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है एंड प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकता है. तो उस पर्सपेक्टिव से ये एक बैंक एस्टैब्लिश किया गया था जिसका बेसिक पर्पस है फाइनेंसिंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड स्पेशली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, बिकॉज जितने भी बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं दैट आर हेल्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस ओनली. सो टू हैव अ स्मूथ फ्लो ऑफ कंडक्ट फॉर फाइनेंशियल डीलिंग्स, दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड. इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करता है जब भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना है, उस केस में for providing the financial assistance and services, for coordinating the functions of institutions engaged in the financing of export-import trade in the country, especially on long-term basis. तो जो हमारे normal banks हैं, जितने भी commercial banks हैं, private or public banks, so all these banks are routed through Exim Bank for facilitating the financial assistance for export and import transactions. Because it's a principal body, like RBI है जैसे वो हमारा central bank है, so it gives an aid to all the banks जब भी उनमें कोई cash shortage या उनको कोई नई provision या services करनी है. Similarly, Exim Bank भी एक exclusive bank है जो export import transactions को aid करने के लिए जितनी भी parties involved हैं, the exporters, the importers, the banks or any sort of intermediaries which are part of the export import transaction, तो ये Exim Bank एक pillar की तरह उनके लिए काम करता है. It also arranges the lines of the credit to other governments for promoting exports of goods made in India. अगर बाहर से भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने भी हमें एक्सपोर्ट करने होते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो इम्पोर्ट हो गया ना, तो नाउ हमारे लिए जब इम्पोर्ट है तो वी आर generating some business into the country. So export import bank can also help the governments of the other countries. The functions of the Exim Bank will be offering finance for exports at competitive rates. Very important, because अगर competitive rates नहीं होंगे और वो market rates पे ही हमें financial assistance देगा तो इस बैंक का कोई फायदा नहीं होगा. बेसिकली पर्पस ये है कि हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन जो हैं वो फैसिलिटेट होती रहें और कंट्री को फायदा रहे. तो इसलिए उन्हें अपने जितने भी लेंडिंग रेट्स हैं, बोरोइंग रेट्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग्स एक्सेट्रा, जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करते हैं, दे हैव टू इंश्योर कि वो कुछ कॉम्पिटिटिव रेट्स पे ही ऑफर किए जाए. देन डेवलपिंग ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सॉल्यूशन मींस अगर एक सॉल्यूशन उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, then they can go for the alternate financial solutions, because every financial instrument is not applicable for the every exporter or importer. जैसे कि अगर कोई letter of credits हैं, तो anybody if does not wants to opt for that mechanism, then something alternate should be available. Data and information about new export opportunity is very important. जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है.
तो जितनी भी नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ वेवर्स हैं, कुछ सब्सिडीज हैं, ये जितने भी रेट्स कस्टम्स के चेंज करने हैं, तो वो कितनी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग अंडर द एम्बेट ऑफ एक्सिम बैंक. Then is respond to export problems and pursue the policy solutions. अब कुछ policies ऐसे भी हो सकते हैं wherein people can feel something discomfort while conducting the business और उन्हें कुछ problems आए, तो Exim Bank के पास ये authority भी है कि it can change the policies and it can give some solutions to the export problems. कई बार कुछ trade barriers होते हैं, कुछ tariff issues होते हैं, lot of problems the exporters face on daily basis. Presently, the Exim Bank offers the following financial products. अब कौन से financial products हैं? पहले हमने function study कर रहे हैं, अब कौन से financial products हैं जो Exim Bank offer करते हैं? अब Exim Bank के पास options हैं export importers को देने के लिए. First is the buyer's credit, corporate banking, lines of credit, overseas investment finance and project exports. ये अपने आप में ही बहुत exhaustive terms हैं जो अभी हम later on in this chapter we will study one by one. ये बहुत important concepts हैं and you all have to remember, and then definitely we are going to discuss in detail all these things और ये कैसे help करते हैं exporters को और कौन से functions और कौन से products applicable हैं importers को separately. This all we are going to discuss. Let's start with the first one. पहला है buyer's credit. तो जो बायर्स क्रेडिट है, बेसिकली बायर्स क्रेडिट एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम है. बायर मतलब जो खरीद रहा है उसके लिए एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम दिया गया है. क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब कि वो उधार पे खरीद सकता है. अब वो कैसे उधार पे कैसे खरीदेगा? उसको कुछ मोटिवेशन चाहिए एक बिजनेस में आने के लिए. सपोज मैं कार लेने जाती हूँ, अब मेरे पास डाउन पेमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो इफ यू रिमेम्बर मारुति ने बहुत पहले एक ऑप्शन निकाला था कि आप 1 रुपया दीजिए और गाड़ी ले जाइए. तो दैट 1 रुपया वॉज द डाउन पेमेंट, लेकिन उसके बदले में क्या था कि मेरी इंस्टॉलमेंट्स, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया गया था. बट आई हैड दैट मोटिवेशन इन मी कि ओके अब तो 1 रुपया दे के भी कार ली जा सकती है. सिमिलरली किसी भी फैसिलिटी को देने के पीछे सबसे पहला रीजन होता है उसको, कस्टमर को, बायर को मोटिवेट करना कि वो इस बिजनेस में एंटर करे. तो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो मोटिवेट करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को कि वो न्यू ज्योग्राफीज को, न्यू कंट्रीज को, न्यू डोमिसाइल्स को, न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करें ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ें. इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इंडिया का टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री. अब इस प्रोग्राम में होता क्या है, जो ओवरसीज बायर है, बिकॉज मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, इंडिया इज एन एक्सपोर्टर इन दिस केस, ठीक है, ये एक्सपोर्टर है और ये तो सेलर है, ठीक है. अब सेलर तो चीज बेचने के लिए तैयार है, जैसे मैंने अभी आपको मारुति के एग्जांपल दिया, मारुति इज रेडी टू सेल, बट मोटिवेट किसे करना है, मैं बायर को. मेरी क्या मोटिवेशन है कि मैं गाड़ी लेने जाऊं, ठीक है, उसने मुझे मोटिवेशन फैक्टर दे दिया कि 1 रुपया रखाओ और गाड़ी ले जाओ. सिमिलरली अब मुझे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है कंट्री की, तो मुझे मोटिवेट किसे करना है, सेलर को या बायर को? सेलर को तो जरूरत नहीं, सो आई हैव टू मोटिवेट द बायर. बायर कौन है? जो दूसरी कंट्री में बैठा है, ओवरसीज बायर. अब उसके लिए क्या ऑप्शन दे रहा है एक्सिम बैंक? उसके लिए ऑप्शन दी जा रही है कि वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट की एक फैसिलिटी दे रहा है जो कि वो इंडियन एक्सपोर्टर के फेवर में लिखेगा and then can proceed for importing the goods and services from India on deferred payment terms. वही बात आ गई, 1 रुपया दो और गाड़ी ले जाओ, लेटर ऑफ क्रेडिट दो और बिजनेस कंडक्ट करो, देन deferred payment basis पे वो उसको पेमेंट करता रहेगा. Buyer's credit provided by Exim Bank can only be used for the export of Indian goods or services. It facilitates exports for SMEs, जितनी भी small and medium enterprises होती हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है by providing the credit to the overseas buyer to import the goods from India.
Since it is a non-LC transaction, it saves the LC charges also, obviously, because वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सपोर्टर के लिए लिख रहा है और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट जो डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे अपनी पेमेंट कर देगा, तो इनिशियली बिजनेस कंडक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है. Buyer's credit is extended to a foreign project company, जिस कंपनी में हम जो डीलिंग इंटरमीडियरी है, that intends to award the project execution to an Indian project exporter. ये nomenclatures हैं जो यूज किए जाते हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए. Then it is a medium and a long-term financing facility at a competitive and attractive rates of interest for smooth execution of the project. ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म होगा. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मीन्स something aiming between 3 to 5 years medium, and then long term would be more than 5 years. The financing is available to all kinds of projects and service exports from India. For example, development, upgrading, expansion of infrastructure facilities, financing of public or private projects such as plants, buildings, professional services such as surveyors, architecture consulting. तो ऑलमोस्ट हर चीज फॉल कर सकती है बायर्स क्रेडिट में. इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन रखा हुआ है कि सिर्फ इन सर्विसेज के लिए ही या इन प्रोडक्ट्स के लिए ही बायर क्रेडिट अवेलेबल है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉल्स अंडर दिस facility. Next facility provided by the Exim Bank is the corporate banking. वैसे तो नाम से काफी क्लियर है आपको कि what is corporate banking, but still हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या क्या फॉल करता है. कॉर्पोरेट बैंकिंग मींस जब हमें फंडिंग असिस्टेंस अवेलेबल है फॉर नंबर 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स EOUs, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोग्राम्स. प्री शिपमेंट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले की असिस्टेंस, पोस्ट शिपमेंट मतलब उसके बाद की फाइनेंशियल असिस्टेंस. अब इसमें क्या क्या फॉल करेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे. थर्ड इज लेंडिंग प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. फोर्थ इज इंपोर्ट फाइनेंस प्रोग्राम्स. फिफ्थ इज प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम्स. Six, financial assistance to special purpose vehicles of a cluster of small and medium enterprises. Lending program for financing creative economy. Finance for grassroots enterprises. Grassroots enterprises वो enterprises होते हैं जो अभी अभी establish हुए हैं. They are yet to establish. और जो अभी अभी grow होते हैं ना, जैसे new enterprises you can say, उस type से. ये जो सारी list है जो अभी हमने बताई है आपको, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉर्पोरेट बैंकिंग है. जितनी भी कंपनीज हैं हमारी, उनको क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, दिस इज फॉलिंग अंडर द एग्जिम बैंक. तो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में फॉल करती हैं, बट दीज आर द मेजर वंस बेसिकली. और इस कैटेगरी की भी आगे सब कैटेगरीज है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी. देन नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ क्रेडिट. लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या फॉल करता है? एग्जिम बैंक हैज बीन एक्सटेंडिंग लाइंस ऑफ क्रेडिट टू एनेबल द इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एंटर इनटू न्यू ज्योग्राफीज or expand their business in existing export markets without any payment. This is the trigger point, any payment risk from the overseas importer. अब जब हमने बायर्स क्रेडिट की बात करी थी तो उसमें बायर के लिए मोटिवेशन था. अब यहाँ पे लाइंस ऑफ क्रेडिट जो है ये सेलर के लिए मोटिवेशन है. सेलर के लिए मोटिवेशन कैसे है कि हम क्रेडिट पे हमने एक्सपोर्टर को बोला कि ठीक है तुम सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंपोर्टर से पैसा नहीं आएगा तो हम इस टाइप से आपकी लाइंस ऑफ क्रेडिट डेवलप कर रहे हैं कि वहां से अगर पेमेंट का कोई रिस्क है तो बैंक विल इंश्योर कि आपकी पेमेंट रिसीव हो. सो दैट टाइप ऑफ टूल जो एक इंश्योर करता है, जो एक इंश्योरेंस देता है एक्सपोर्टर को, देन ही कैन प्रोसीड फॉर द बिजनेस. They have laid special emphasis on extending the LOC, that is lines of credit, as an effective market entry tool. देखो मैंने कहा ना आपको कि उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं मार्केट में अगर एंटर करूं तो मेरा पैसा डूब ना जाए, as well as a means of market diversification for the Indian exporter. नेक्स्ट आता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का मतलब है जब एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करना है, मुझे और बढ़ाना है, लेके जाना है एक नई ऊंचाई पे, then driving the economic growth of the region, they encourage and facilitate conditions for the Indian companies to invest abroad. अब इंडियन कंपनीज अगर अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनके पास क्या फाइनेंसिंग और फंडिंग अरेंजमेंट्स हैं,
that falls under the overseas investment finance category. वहाँ की मार्केट्स, एफिशिएंसी, स्ट्रैटेजिक एसेट्स जिसमें भी वो इन्वेस्ट करना चाहें, अब वो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा उन्हें लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो ये सब कुछ जो इंश्योर करता है वो एग्जिम बैंक इंश्योर करता है। बट ये ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जाके वहां पे पैसा लेके आ सकता है। यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ डिटेल्ड प्रपोजल्स, फिर उन प्रपोजल्स पे स्टडी होती है, वो पास होते हैं नहीं होते, वहां पे आरओआई देखा जाता है, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बिफोर यू गेट द एडिक्वेट फंडिंग फ्रॉम द एग्जिम बैंक। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। Now, Exim Bank has been one of the prime drivers in encouraging the project exports from India, and it has enabled Indian companies to secure the contracts across various geographies over past 3 decades and supplement the development objectives of the host countries. अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स वहाँ डिस्कस होते हैं, फिर उसके बाद उस पर फंडिंग का डिसीजन लिया जाता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो एक्सपोर्ट के लिए जाना है, उसको कितना फंडिंग देना है, कैसे देना है, वो कौन सी कंट्री में जा रहा है, वहां से कितना आरओआई आएगा, कितनी जल्दी पेमेंट वापस किया जाएगा, कितनी जल्दी फंड्स वापस हो जाएंगे बैंक के, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल एक्सपोर्टिंग एनी प्रोजेक्ट और फंडिंग एनी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट. Also, Exim Bank gives the support to the project activities in engineering, procurement, and construction. They extend the funded and the non-funded facilities for the following export of projects and the services. For example, civil engineering and construction projects, turnkey projects, technical and consultancy service contracts, and the supplies. जितनी सर्विसेज प्रोग्राम्स और सारी फंडिंग अरेंजमेंट्स अभी तक हमने स्टडी करे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो एग्जिम बैंक देता है, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी फॉल होती है कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज द फाइनेंसिंग सर्विसेज एंड देन देयर आर द नॉन फाइनेंसिंग सर्विसेज। तो फाइनेंसिंग वाली तो अभी हमने स्टडी कर ली, बट ये जो सर्विस है ये फॉल करती है आपकी नॉन फाइनेंसिंग सर्विस में। सो कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस, consultancy and technology services wherein Indian consultants are assisted by the way of long-term financial assistance, manpower, expert recruitment, preparation of project report, plans, transfer of technology, etc. You must be knowing कि बहुत सारे ऐसे consultancy arrangements या consultancy agreements होते हैं जिनमें कुछ intermediaries अपॉइंट किए जाते हैं जो इन ट्रांजेक्शन्स को और ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं। अब लेकिन वो कंसल्टेंट्स फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उन कंसल्टेंट्स को पैसा चाहिए। अब वो कंसल्टेंट्स पैसा कहाँ से लेते हैं? एक्सपोर्टर के पास इतना पैसा नहीं है, वो अपना एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट इट कैन नॉट गो फॉर द कंसल्टेंसी। उसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन की, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन यूज होनी है, कब कितना टाइम कहाँ लगना है, कौन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस उसे करने हैं, लॉट ऑफ थिंग। तो उस केस में ही कैन ऑलवेज हैव अ हेल्प फ्रॉम द एग्जिम बैंक, जो उसे एक ऑप्शन दे सकता है कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, जिसमें जो भी कंसल्टेंट कंपनीज हैं वो अपॉइंट की जाती हैं और उसमें बकायदा ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन पावर दे हैव टू पूल, what type of reports, plans, etc. they have to prepare on behalf of exporter, कौन से statutory compliances हमें complete करने हैं and lot of other things. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सारी फंडिंग और सारी पेमेंट उस कंसल्टेंसी की that is routed through Exim Bank but which is automatically taken as a part of funding with the exporter. ऐसा तो नहीं है ना एक्सिम बैंक फ्री काम करेगा सेलर के बिहाफ पे, पैसा तो वो एक्सपोर्टर से ही लेगा, बट ये है कि थोड़ा घुमा के। देन कम्स द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ये मैंने अभी आपको बताया है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस क्या होता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इज व्हेन कॉर्पोरेट्स आर इंटरेस्टेड इन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड, और जिसमें जो इक्विटी फाइनेंस है वो एक्सिम बैंक देता है और इक्विटी पार्टिसिपेशन भी वो उसमें करता है, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करना है या लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस चाहिए उसको ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में, तो एक्सिम बैंक वो सब फैसिलिटेट करता है। Import loans, very important. Import loans for financing imports from the third countries for projects to be executed in the foreign countries. अब ये buyer के लिए है, वो seller के लिए था। International merchant banking services. International merchant banking services includes the foreign currency financing and advisory services
for raising the low cost finance for projects abroad to be executed by the Indian companies. अब ये किस केसेस में होते हैं? जिस केस में हमें फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग चाहिए या कोई एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, जब मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ फाइनेंस रेज करना है। और ये कौन एग्जीक्यूट करता है? ये सारी की सारी इंडियन कंपनीज एग्जीक्यूट करेंगी। Next is Export Marketing Fund, which is commonly called as EMF. Exim Bank is the nodal agency designated by the Government of India to manage the Export Marketing Fund to accelerate the export growth of target products with the industrialized markets. अब सारा पैसा जितना भी एक्सिम बैंक को मेंटेन करना है, लेना है, देना है, एक्सपोर्टर को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, इंपोर्ट्स को कितने लोन देने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, those all are regulated through a fund which is called Export Marketing Fund. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक को ये राइट दे रखा है दैट इट कैन प्रिपेयर एंड मेंटेन दिस फंड, जिसका बेसिक पर्पस क्या होगा? एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेजिग्नेटेड नहीं है एक्सपोर्ट्स के लिए, उनके लिए एक्सपोर्ट्स इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली फॉर इंपोर्ट्स ऑल्सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्रोहिबिटेड है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, उसमें डिफाइन किए जाते हैं। तो ये फंड जो है ये हेल्प करता है सारे पैसे की एक्यूमुलेशन को, और उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप की फैसिलिटी, किस टाइप की असिस्टेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जनरेट कर सकता है। EMF1, it was a component of a World Bank loan to India, which constituted $250 million for the industrial export engineering product project, while EMF2, which amounted to $37 million is a component of a World Bank loan to India for export development. अब ये देखो, ये वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया है, इतना पैसा दिया था इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, फिर इतना पैसा और दिया था एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए। Exim Bank has also launched the Export Marketing Finance EMF3 from its own resources. ये इसने अपने बनाया। EMF are to support any manufactured export and addition computer software. The activities which are eligible for the Export Marketing Fund, अब हर एक्टिविटी तो फॉल नहीं कर सकती ना, तो कुछ एक्टिविटीज हैं, डेस्क रिसर्च, ओवरसीज फील्ड मार्केट रिसर्च, माइनर प्रोडक्ट अडेप्टेशन, ओवरसीज ट्रैवल, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। सिर्फ इन सर्विसेज को ही फैसिलिटेट कर सकते हैं EMF सपोर्ट। एस्टैब्लिशिंग ओवरसीज ऑपरेशंस आर, अब जो ओवरसीज ऑपरेशंस उसने एस्टैब्लिश करनी है उसमें क्या क्या फॉल करेगा? नंबर 1 इज ट्रैवल टू इंडिया बाय ओवरसीज बायर्स। फ्रंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, फ्रंट एंड होता है जो स्टार्टिंग से ही हमें जब अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज करनी है तो वहीं से जब हम उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं। देन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इक्विपमेंट फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट, टूलिंग, जिग्स एंड फिक्सचर्स, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट्स, टूलिंग, जिग्स, फिक्सचर्स, उसकी फंडिंग करनी है, दैट ऑल विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सर्विस और प्रोग्राम जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है कि वो प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वैसे तो, बट इफ यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट मैनर विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पता है क्यों? बिकॉज अगर प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस का मैकेनिज्म प्रॉपरली डेवलप ना किया जाए तो इतनी ज्यादा लिटिगेशंस और इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट और जो अथॉरिटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे एस्टैब्लिश की गई हैं, वो सारा टाइम बैठ के ना यही डिस्कस करते रहेंगे और इसी के बारे में ही लिटिगेशन केसेस दे विल बी रिजॉल्विंग। सो बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है या जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है, अगर वो कुछ डैमेज हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, स्टोलन, थेफ्ट, एनीथिंग हैपेंस लाइक दैट, तो बेसिकली उसको इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, वो कैसे इंश्योर किया जाता है, और अगर गॉड फॉरबिडन कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए, नाउ हु इज गोइंग टू बियर द लॉस? द इंपोर्टर
जो सामान मंगवा रहा है जिसके पास पहुंचा ही नहीं, या वो एक्सपोर्टर जो सामान भेज रहा है जिसने ऑलरेडी अपने से भेज दिया है, तो मिडल ऑफ द वे में कहीं जाके वो प्रॉब्लम में आ गया है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं तो रिस्क कवरेज चाहिए, एक्सपोर्टर को भी इंपोर्टर को भी। तो अब उस रिस्क को कवर करने के लिए हमने क्या किया है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, एक्सिम बैंक ने एक पॉलिसी बनाया है जिसमें एक प्रॉपर इंडेमनिफिकेशन दिया जाएगा एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी। अब इसमें क्या होता है, दिस फोर्सेस द एक्सपोर्टर्स टू इंडेमनिफाई देमसेल्व्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्रोडक्ट लायबिलिटी through product liability insurance which is offered by the insurance companies। अब ये देखो, ये इंटरमीडियरीज हैं यहाँ पे, जो इंश्योरेंस कंपनीज इंडेमनिफिकेशन देती है किसे, रिस्क ऑफ इंसिडेंस एक्सपोर्टर्स को। As the cost of PLI premium is high, which acts as a deterrent to market entry, efforts of Indian exporters adversely due to its effect on price competitiveness. Therefore, the Exim Bank's PLI program enables the exporter market entry effort by sharing the initial cost of PLI premium. अब होता क्या है कि अगर मैं प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस बाहर से इंश्योरेंस कंपनी से लूंगी, I have two options as an exporter. I can choose for the PLI program given by the Exim Bank or the PLI program given by the normal insurance company. But usually the premium rate of the normal insurance companies in this category is higher. Therefore, जो PLI program by Exim Bank है, अगर मैं उससे असिस्टेंस लेती हूँ तो मेरा जो प्रीमियम का रेट है that can be shared between the exporter and the bank, राइट? तो इसलिए जो PLI प्रोग्राम है एग्जिम बैंक का, वो मुझे फैसिलिटेट करता है कि ओके, आई कैन एंटर द मार्केट एंड आई कैन एब्सॉर्ब द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम बिकॉज द बैंक इज सपोर्टिंग मी इन दिस। Then what happens? The registered Indian exporters endeavoring to export to OECD, that is the Organization for Economic Cooperation and Development, countries are eligible for support under the program. Another category of very important service which is given is the Export Vendor Development Lending Program, जिसे हम EVDLP कहते हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है, सपोज आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी प्रोडक्ट बट आई वांट टू एंटर इनटू एन एक्सपोर्ट बिजनेस। अब मैं मैन्युफैक्चर तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस करना है। एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए मेरे पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। मैंने गुड्स आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो गुड्स कैसे मिलेंगे, किस वेंडर से खरीदूं। वो वेंडर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए गुड्स की, वो वेंडर की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, वो वेंडर रिलायबल होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए भी एक्सिम बैंक ने एक ऑप्शन तैयार किया है विच इज कॉल्ड एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें वो मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को या ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउसेस को वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये EVDLP एनेबल करता है कि मैं वेंडर्स को कैसे डेवलप करूं, क्योंकि ये एक ऐसे एक्सपोर्ट है जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स है, ये बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स का। तो इस केस में क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स को एक रुपी लोन की एक स्कीम दी जाती है, जिसमें कि वो स्ट्रेटेजिक वेंडर डेवलपमेंट प्लान्स बना सकते हैं फॉर इंक्रीज सप्लाई ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स थ्रू क्रिएशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैकवर्ड लिंकेजेस विद द वेंडर्स। मेरे पास पैसा आएगा, वेंडर्स को लोकेट करूंगी, वेंडर्स को पैसा दूंगी, तभी सामान खरीदूंगी। तो ये रुपी लोन स्कीम इस केस में फॉल करती है। These activities can include acquisition of production machinery। अब वेंडर के पास मशीनरी लगवानी, टूलिंग लगवानी, मुझे कोई स्पेशल टाइप का कंपोनेंट डेवलप करना है, वही एक्सपोर्ट करना है। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है कि मुझे कोई एक्स कंपोनेंट पहले डेवलप करना है, उसके बाद मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगी। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है ये मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव माई मैन्युफैक्चरिंग हाउस। तो उस केस में व्हाट आई विल डू, आई विल लोकेट अ वेंडर और आई विल डेवलप अ वेंडर। मैंने वेंडर को बोला, उसके पास सारी टेक्निक्स हैं, उसको सब पता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। सो आई विल अरेंज एज एन एक्सपोर्टर, आई विल अरेंज अ रुपी लोन फ्रॉम द एक्सिम बैंक एंड विल इंश्योर कि वेंडर के पास वो सारी फैसिलिटीज हों। फैसिलिटीज क्या होंगी, प्रोडक्शन मशीनरी, टूलिंग परचेज करनी है, मोल्ड्स बनाने हैं, जिग्स, डाइज, एंसिलरी इक्विपमेंट चाहिए, core working capital assistance extended by exporters to vendors, soft expenditures on vendor development such as vendor training, technical assistance, etc. So that's all for this chapter. Thank you very much and keep learning with us.